الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى فاطمة الزهراء محمد والحسين المصفى وجميع الأولياء ومصابيح الدجى وأعلام الهدى ومنار التقى والعروة الوثقى وحبل المتين والصراط المستقيم. وصل على وليك وولاة عهدك والأئمة من ظلهم ومد في أعمارهم زد في آجالهم وبلغهم أقصى آمالهم دينا ودنيا وآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. سورة هود سورة الأنبياء 21 سورہ قرآن پاک کا اور 73 آیت نمبر. کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے گریٹ اسکالرس ہیں اور میں ان کے سامنے کچھ کہوں یہ بہت ہی جسارت کی بات ہے. عذاب حضرت ہی کام کہ من حق بزنم خودم مطالعه هستم. انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ فیو ورڈز میں میسیج دے دیا جائے جہاں تک ہماری آواز پہنچے. دنیا اسلام کے جس جس کونے میں ہماری آواز پہنچ رہی ہے ہم قرآن اور معصومین کے ساتھ بالتوفیق جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کی توجہ وجعلناہم ہم نے قرار دیا. جعلناہم ہم طرف امام فخر عزیز کو بیان کرتے ہیں تفسیر کثیر میں. ہم نے قرار دینے کا لفظ استعمال کر کے انہوں نے امامت کی سلیکشن کا اعلان کیا ہے کہ امام خدا کی طرف سے سلیکٹڈ. اس کے بعد ائمتاً امام یہدونا ہدایت کرتا ہے بامرنا ہمارے یعنی اللہ کی امر. اب جو اللہ کا سلیکٹڈ امام ہے وہ اللہ کے امر کی ہدایت کرتا ہے اور یہدونا کے ساتھ یہ لگا کر حال اور مستقبل پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو کور کرتا ہے. یعنی یہاں پر یہ ائمہ کا جمع کا صیغہ ہے اور ہدایت کو جو ہے اور امرنا کو بھی اللہ نے اپنے سے منسوب کیا ہے. اس لیے یہاں یہ آیت ہمارے ایمان کو اس بات پہ اسٹرانگ کرتی ہے کہ کچھ ایسے امام ہیں جنہیں اللہ نے خود سلیکٹ کیا ہے اور اپنے امر کا اختیار بھی لیا ہے. بس ہمیں یہ ہے کہ اپنی عقل اور ایمان کی خلوص کی سیڑھی پہ انہیں دیکھنا ہے کہ ہم وہ امام جو امر الہی کا اختیار رکھتے ہیں وہ کون سے ہو سکتے ہیں اور جو امر الہی کو نافذ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں وہ کون سے ہو سکتے ہیں. پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین. اہل ایمان ہو جاؤ. یہاں پہ بھی فخر رازی صاحب اپنی تفسیر کبیر میں جو ہے سب سے اتھینٹک تفسیر اہل سنت والجماعت کی جو ہے اس کو مانا جاتا ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو اردو کا صیغہ ہے نا یہ واجب ایمان ہے تو واجب ہے کہ اہل ایمان ہو صادقین کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا آمنوا اہل ایمان صرف رسول کے دور میں نہیں تھے. یہ رسول کی بات نہیں. آیت قرآن کی ہدایت قرآن کی امامت قیامت تک ہے تو آیت کا حکم بھی قیامت تک ہے تو اہل ایمان بھی قیامت تک جائیں گے. اور اگر اہل ایمان قیامت تک جائیں گے تو
सादिकीन भी क़यामत तक जाएंगे। और ये अहले ईमान पर है कि वो अपने ईमान से सादिकीन के साथ होते हैं या नहीं। और ये अमर का सीगा है, ये फ़ख्र राज़ी फरमाते हैं। और मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से इस बात पे पहुंची हूँ कि वो इस बात का एतराफ़ करते हैं इमाम फ़ख्र राज़ी कि ये जो सदाकत जिन सादिकीन का हुक्म दिया गया है कि हमारे ईमान का हिस्सा जिनके साथ हमारा ईमान है और हमारे ईमान में उन्हें रहना है, वो खता से दूर है, वो मासूम है। हर जायज़ुल खता पर वाजिब है कि वो ऐसे सादिक की पैरवी करे जिससे खता कभी सरजद नहीं होती है। ये चीज़ है। और उसके बाद ये मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस में मैं बात खत्म करती हूँ। 3 पॉइंट्स आपके सामने छोड़ूंगी। एक मुसलमान की हैसियत से अगर हमने कुरान की आयत को अपने ईमान का हिस्सा नहीं बनाया तो कल क़यामत के दिन मम माता वलम यअरिफ़ इमाम ज़मानिही मौत मैततन जाहिलिया, कुफ्र की मौत मरा जिसने अपने वक्त के इमाम को नहीं पहचाना। जिसने भी अपने वक्त के इमाम को नहीं पहचाना वो कुफ्र की मौत मरा। हम यहाँ पर इस मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस में बहुत सारे लोग कुरान को इमाम वक्त का इमाम या ज़माने का इमाम कहते हैं, लेकिन इतने सालों से 1400 साल से बहुत सारे लोग हैं जो कुरान नहीं पढ़े, कुरान को नहीं जानते, कुरान का मफ़हूम नहीं समझते, कुरान को अंडरस्टैंड नहीं करते। तो इसका मतलब है कि वो कलमा पढ़कर भी कुफ्र की मौत मरते हैं। तो यहाँ हमें इस चीज़ जैसे ये आयत जा रही है कुरान हुक्म इलाही में जो अय्युहल्लज़ीना कूनू मअस-सादिक़ीन, और फिर अल्लाह इमाम करार देता है अपने अमल की हिदायत के लिए। तो जो जो अमल इलाही पर अमल करता है, जो हुक्म खुदा पर अमल करता है, वो खुद इमाम नहीं बनाएगा। खुदा के इस्तफा और इर्तज़ा सिलेक्टेड इमामों को, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, नबी पाक के ज़माने से मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बातें, जनाब सही मुस्लिम में मुस्लिम जो है वो फरमाते हैं कि नबी पाक ने फरमाया कि मेरी बात मेरे 12 नक़ीब है, जैसे मूसा 12 नबियों को न जाने, मेरे 12 नक़ीब हैं जो कि मेरी उम्मत को, मेरी कौम को क़यामत तक के लिए ले जाएंगे। और आज की ये हमारी जो नशिस्त है उस गैबत में जाने वाले इमाम के लिए है, जिसके लिए मेरे नबी पाक ने खुद फरमाया कि मेरी उम्मत की आखिरी दौर में बेहतरीन इबादत, बेहतरीन अमल, बेहतरीन तक़वा, बेहतरीन ईमान, बेहतरीन साथ ये है कि हम अपनी दुआ और अपने ईमान में उस वक्त के इमाम की याद को ताज़ा रखें। वो दुआ मुस्तजाब नहीं होती जिसने ज़बूर इमाम की दुआ न हो। आइए मिलकर अहद करें, ए मज़लूम इमाम, ए पर्दे ग़ैबत में बैठने वाले, ए रौनकों से दूर इमाम, सहराओं में ज़िंदगी बसर करने वाले इमाम, हम आपसे अहद करते हैं, हम अपनी कौम को, अपने ईमान को आपके इंतज़ार में अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम कहकर न सिर्फ ईमान बल्कि अपनी रूह को भी मजबूत बनाकर, ताकि क़यामत के दिन हम अपने नबी से शर्मिंदा न हों। इस बात के साथ ही मैं माज़रत हूँ वक्त देने पर और अपने उलमाए किराम आप सबका शुक्रिया, आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आप तशरीफ़ लाए और हम इस काबिल हुए कि हम अपने पर्दा गैब में मज़लूम अजीब जिसे कहते हैं, उस मुंजिए बशरियत के आलम, वो जो इंसान को निजात देने वाला है, उसके लिए चंद मोहब्बत के फूल निछावर करने लगे हैं। खुदा मुताल हम सब की इस बात को कबूल फरमाए, इस दुआ के साथ कि खुदा मुताल हम सबको रोज़े क़यामत और ज़बूर इमाम ज़मान के बाद दो दुआएं, खुदाया हमें ऐसे शिया करार दे जिन्हें तकलीफ होती है तो अली के सीने में दर्द होता है। खुदाया हमें ऐसे फॉलोअर्स, ऐसे आशिक करार दे कि जब मेरा मौला काबा से अज़ान दे तो हम तय्यब अर्ज़ बन जाए, ज़मीन हमारे कदमों से सिमट जाएगा। इसके साथ ही आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ और एक दफ़ा फिर आप सबका खुशामदीद कहती हूँ। मेरे मौला की ज़िंदगी सलामती, मेरे मौला की दुश्मन जो है वो कमज़ोर हो, दोस्तों में इजाफा हो, और मौला की सलामती के लिए मुश्किल के लिए गुलाम